Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the structure and the function of muscle. What are the basic physiology of muscle? We will discuss in this topic. What is basically a muscle? Muscle is basically a contractile tissue. It made up of contractile filaments that move past each other and change the size of them. तो जो मसल है वो ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट से मिलके बनता है जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको डिक्रीज कर सकते हैं. That means they can undergo in the contraction and the relaxation phase. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फेज है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट की वजह से होती है जो कि मसल में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम मसल को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं. अब मसल बेसिकली जो है वो मेड अप ऑफ ये दीज कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट दीज मसल फाइबर बेसिकली बाउंड विद ईच अदर थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू. एक कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म इन मसल फाइबर्स को आपस में कांटेक्ट में रखती है. अब जो इनकी डिफरेंशिएशन है बेसिकली जो मसल की डिफरेंशिएशन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ हो चुकी होती है. एंड increase in the size of the muscle with increase in the growth from infancy to its adult will also occur. What are basically the basic function of the muscle tissue? The function of the muscle tissue involves the movement, stability, thermogenesis, body movement, respiration, constriction of organ and muscles, constriction of organ and vessels, and heartbeat. So मूवमेंट में बॉडी की स्टेबिलिटी में, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बॉडी की मूवमेंट में, रेस्पायरेशन में जो हम एयर को एक्सेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं तो इसमें, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल, जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं उनमें जो कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है इसमें. एंड देन हार्ट बीट में कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है. तो वो जो पंपिंग है वो पंप करने का जो फंक्शन है वो बेसिकली इन मसल टिश्यू की वजह से होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं हार्ट में. So the basic function of the muscle tissue is the movement, stability, thermogenesis, body movement, respiration, constriction of organ and vessel, and the heartbeat. So what are basically the classification of the muscle? Depending upon saturation, depending upon control, and depending upon function. मीन के मसल्स को जो क्लासिफाई किया है वो उनकी शेप की सेट्राइएशन की बेस के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल दैट इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दैट इज स्केलेटल मसल, दैट इज कार्डिक मसल और स्मूथ मसल. So the skeletal muscle has these three muscles according to the function, that is skeletal, cardiac, and smooth. Their shape is totally different. The arrangement of the nuclei is different, and the striation pattern is also different in these three types of muscles. So skeletal, cardiac, smooth. Some characteristic of these all muscles are given in this diagram. The skeletal muscle, if we talk about the shape of the skeletal muscle, is the shape of the skeletal muscle is cylindrical. Cardiac muscle has the cylindrical and the branch shape, and the smooth muscle has a fusiform shape. Sacria. Skeletal muscle में present है, cardiac muscle में भी present है, but in the smooth muscle these are not present. Nucleus. मल्टीन्यूक्लिएटेड है स्केलेटल मसल, यूनिन्यूक्लिएटेड है कार्डिक मसल, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेंट्रल अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इन द स्मूथ मसल. नाउ skeletal muscle is voluntary, cardiac muscle is involuntary, and smooth muscle is also involuntary.
smooth muscle basically present in our digestive system also. So the special structure in the skeletal muscle, no special structure is present, while in the cardiac muscle, intercalated disc is present, maybe single unit or maybe multi-unit intercalated disc is present in the smooth muscle. So according to the function, the muscles are basically classified into the skeletal, cardiac, and smooth. And then what are basic characteristics of these skeletal, cardiac, and smooth muscles, which are given in this table. Now, the basic structure, what is basic anatomy of the skeletal muscle? Uh, Basically, there is present a muscle mass. Muscle mass or muscle tissue is basically made up of large number of individual muscle cells or myocytes. And these muscle cells are commonly called the muscle fiber. That the muscle mass is formed of a large number of muscle fibers, and the muscle fiber is also known as muscle cell and myocyte. Now, fascia. The skeletal muscle are basically multinucleated and arranged parallel to one another with some connective tissue in the muscle mass and separated from the neighboring tissue by a thick fibrous tissue which is known as fascia. तो पहले हम मसल मास की बात करेंगे कि मसल मास बेसिकली क्या है। मसल मास, ये जो मसल मास है ये डिफरेंट टाइप के मसल फाइबर्स से, मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट से मिलकर बना है। तो ये जो मसल फाइबर की अरेंजमेंट है, जो मसल सेल्स हैं, these muscle fibers or these muscle cells basically form the muscle mass, and this muscle mass is basically covered with the connective tissue and separated from the other neighboring tissues through a connective tissue, and this connective tissue is basically known as the fascia. And beneath the fascia, the epimysium is present. What is epimysium? Muscle is basically covered by a connective tissue sheet which is called epimysium. फेशिया क्या था? कनेक्टिव टिश्यू की वो लेयर थी जो कि मसल मास को अदर नेबरिंग जो है वो टिश्यू से सेपरेट कर रही थी। अब इसी फेशिया के नीचे जो है, बिलो फेशिया, एपिमाइजियम जो है वो प्रेजेंट होगा, जो कि मसल को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और ये जो एपिमाइजियम है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ठीक, अब सेसिकल, अब जो मसल फाइबर है, ठीक है, द मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द वेरियस ग्रुप विच इज कॉल्ड बंडल और फेसिकल। पहले हमने बात की मसल मास की, मसल मास जो है वो मसल फाइबर से मिलकर बना था। देन हमने फेशिया की बात की कि जो मसल मास है, जो मसल है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो कवर्ड होता है। वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि नेबरिंग टिश्यू से उसे सेपरेट कर रहा है, डेट इज फेशिया। Now epimysium. Beneath the fascia, the muscle is basically covered by a connective tissue. This connective tissue is basically known as epimysium. Up below the epimysium, the muscle fibers are arranged in bundles, 1, 2, 3 and 4 and multi numbers of जो है वो numbers में ये bundles जो है ये present होते हैं। अब इन bundles को हम कहते हैं fascicles। इन बंडल्स के अंदर जो है वो मसल की फाइबर्स, जो मसल के सेल है वो अरेंज करेंगे पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे। नाउ व्हाट इज पेरीमाइजियम? द कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर ईच फेसिकल इज कॉल्ड पेरीमाइजियम। ठीक है, एपिमाइजियम क्या थी? फेशिया के बिलो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसने पूरे मसल को कवर किया हुआ था, वो एपिमाइजियम थी। फेसिकल क्या था? मसल के फाइबर अरेंज कर रहे थे एक बंडल की फॉर्म में, उन बंडल्स को जो है वो फेसिकल्स कहते हैं। और पेरीमाइसियम क्या है? द कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट कवर्ड दैट बंडल इज नोन एज द पेरीमाइसियम। एंड देन देयर इज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या है कि वो जो बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं, जो फेसिकल के अंदर मसल की फाइबर्स हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड होती हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू शीट को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें,
तो यहाँ पे बोन है, बोन के साथ एक टेंडोन टेंडन है, टेंडन जो है वो बेसिकली मसल को जो है वो बोन के साथ अटैच करता है। देन देयर इज एपिमाइजियम, एपिमाइजियम क्या थी, जिसने कवर किया था पूरे मसल को, और फेशिया के बिलो जो है वो प्रेजेंट थी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी। उसके साथ ही हमारे पास बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं जिन्हें हमने फेसिकल्स कहा है। अब इन फेसिकल्स को भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर जो है वो क्या कर रही है, कवर्ड कर रही है। इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हमने क्या कहा था, पेरीमाइसियम। इस बंडल्स के अंदर मसल फाइबर थी। अब हम एक मसल फाइबर को अगर लेते हैं तो ये जो एक मसल फाइबर है वो जिस चीज से कवर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है, each muscle fiber is covered by a connective tissue fiber which is known as endomysium। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये endomysium जो है वो दिखाई हुई है। In this structure we can also see here there is a muscle mass, then there is tendon which attach the muscle towards to the bone. Then the muscle fiber in the muscle are arranged in the bundle form, which is known as muscle vesicles. And in these vesicles, the muscle fibers are present. अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है इसे हम एपिमाइसियम कहेंगे, जो कि वेसिकल को कवर कर रही है। अब जो एपिमाइसियम थी जो कि आउटर कवरिंग थी, ठीक है। अब इन मसल वेसिकल्स को जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है वो कवर कर रही है, इसको हम पेरीमाइसियम कहेंगे। अब इस पेरीमाइसियम ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर जो मसल की फाइबर्स मौजूद हैं, इनको जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कवर कर रही है, दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज द एंडोमाइसियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मसल के फाइबर है, ये 1 2 3 4 5 है, मतलब 6 मसल फाइबर्स इज प्रेजेंट इन दिस मसल मास। और इसको जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कवर कर रही है इसको हम एंडोमाइसिन कह रहे हैं, जो कि व्हाइट स्ट्रक्चर में है, व्हाइट फॉर्म में है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके ये जो मसल फाइबर्स की बंडल्स है इसको हमने फेसिकल कहा है। ये जो फेसिकल है, मसल फेसिकल, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है रेड फॉर्म में है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस लेयर इज नाउन एज द पेरीमाइसियम। अब ये जो एक फेसिकल है, इसी तरह के और फेसिकल होंगे जिसके अंदर बंडल ऑफ फाइबर्स होंगे, उनके दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम कहेंगे। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमाइसियम, epimysium and endomysium. After that, each muscle cell or the muscle fiber is basically cylindrical in shape. अब हम मसल के सेल की बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि skeletal muscle होता है, then there is the smooth muscle and then cardiac muscle, that was the different types of जो है वो muscle. So the each muscle cell or the muscle fiber is basically cylindrical in shape, and their length is 3 centimeter and their diameter is 10 micron to 10 micro to 100 micrometer, and the tendon is present which attach the muscle toward the connective tissue. Then what is basically sarcolemma? अब हम मसल मास से मसल फाइबर के लेवल तक पहुंच गए हैं। हमने मसल मास से फेशिया, पेरीमाइसियम, देन एपिमाइसियम एंड एंडोमाइसियम को डिस्कस कर लिए। अब हम मसल फाइबर के लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मसल फाइबर को जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कर रही थी उसे हमने एंडोमाइसियम कहा था। अब जो सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा इज बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन दैट कवर द मसल फाइबर एंड बिलो द एंडोमाइसियम। उस कनेक्टिव टिश्यू को जिसने मसल फाइबर को अटैच किया होता है, उसके बिलो जो मसल सेल मेम्ब्रेन की लेयर होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, सार्कोलीमा कह रहे हैं। अब उस मसल फाइबर के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ओके, अब हम मसल फाइबर के लेवल तक पहुंच गए हैं। मसल फाइबर के बीच जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी उसको हमने एंडोमाइसियम कहा था, और जो मसल फाइबर की गिव मेम्ब्रेन बिलो द एंडोमाइसियम है उसको हम सार्कोलीमा कह रहे हैं, और जो मसल फाइबर के अंदर प्लाज्मा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द सार्कोप्लाज्म। In this structure we can see here there is a muscle fiber. In the muscle fiber, this is basically the sarcolemma, that is the cell membrane covering of the muscle fiber, and then there is a sarcoplasm.
In the sarcoplasm, a different type of structure is present. What are these type of structures which are present in the plasma of the muscle fiber? Is nuclei, myofibrils, Golgi apparatus, mitochondria, sarcoplasmic reticulum, ribosomes, glycogen droplet, and the lipid droplet is present. तो ये एक मसल की फाइबर है. इस मसल फाइबर के अंदर जो प्लाज्मा है उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, और जो इस मसल फाइबर की कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्म में उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं. जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसी तरह मसल फाइबर जो कि मसल का एक सेल है उसके अंदर भी डिफरेंट जो है वो न्यूक्लाई, मायोफिब्रिल, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, sarcoplasmic reticulum, the specialized structure of the muscle cell will also present in here. हमने एक नई स्ट्रक्चर की बात की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम. ये हम डिफरेंट जो है वो सेल के अंदर भी पढ़ चुके हैं. But the one structure is the myofibril, which is basically a different type. And other name we are listening in this cell basically. So what is myofibril? Myofibril क्या है? न्यूक्लियर को भी हमने देखा, सेल के अंदर गोल्गी apparatus को भी देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, उनके हमें फंक्शन की बेसिक पता है क्योंकि वो हम सेल के लेवल पे स्टडी कर चुके हैं. लेकिन जो इस मसल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है दैट इज मायोफिब्रिल. मायोफिब्रिल क्या होती है? एक मसल फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर जो है ये मायोफिब्रिल जो है ये बेसिकली पैरेलल फिलामेंट्स की होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द मसल फाइबर. These myofibril run the entire length of the muscle fiber, and the diameter is 0.222 micrometer, and the length varies between 1 centimeter to 4 centimeter. Okay. Okay. What is basically the structure of the myofibril? ये जो ये हमें बंडल्स नजर आ रहे हैं, ये मायोफिब्रिल्स के बंडल है जिनके ऊपर हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नजर आ रहे हैं. तो ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये बेसिकली पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक बंडल के फॉर्म में एक मसल फाइबर के अंदर. ठीक है, इन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं. अब अगर हम एक मायोफिब्रिल को करते हैं तो एक मायोफिब्रिल के अंदर बेसिकली जो है हमें स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं. ये जो स्ट्राइएशंस हैं ये बेसिकली लाइट बैंड है और डार्क बैंड है. अब हम इनको जरा थोड़ा सा देखते हैं. ये अब हमने एक मायोफिब्रिल को जो है वो पकड़ लिया. ठीक है, एक मायोफिब्रिल. अब ये जो एक मायोफिब्रिल है ये मसल सेल है, ये मसल फाइबर है. मसल फाइबर के अंदर जो है वो डिफरेंट मायोफिब्रिल्स हैं. सार्कोलीमा इसके अंदर ही प्रेजेंट है. अब ये एक स्ट्रिप को हमने जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है एक मायोफिब्रिल को. अब हम एक मायोफिब्रिल के लेवल के ऊपर जाके देखते हैं तो इसमें हमें डार्क बैंड नजर आ रहे हैं और लाइट बैंड नजर आ रहे हैं. द लाइट बैंड Li is basically the I band, and I band is basically the isotropic band. They can pass the light. Okay, and the dark band is basically the thick band, and it is also known as the anisotropic band. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइट बैंड जो है वो व्हाइट फॉर्म में दिखाया गया है, डार्क बैंड जो है वो थिक फॉर्म में जो है वो दिखाया हुआ है. अब ये जो डार्क बैंड है ये डार्क बैंड आप ए से याद कर लें, दिस इज एन आइसोट्रोपिक. एंड द लाइट बैंड को आप एल के आगे जो आई है उससे याद कर लें, दैट इज द आई बैंड. लाइट बैंड इज आई बैंड, डार्क बैंड इज द एन आइसोट्रोपिक बैंड एंड ए बैंड. ठीक है, अब जो लाइट बैंड है उसके सेंटर में जो एक लाइन होती है इसको हम कहते हैं जेड डिस्क एंड जेड लाइन. Okay, light band or I band is divided into the two portions by a one single line which is known as the Z line or the Z disc, and the portion of the myofibril in between two Z line is known as the sarcomere. अब ये जो लाइट और डार्क बैंड है ये थ्रू आउट द मायोफिब्रिल जो है वो एक्सटेंड होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मतलब लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं. ठीक,
अब हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम मसल फाइबर के अंदर पहुंच चुके हैं। हमने मसल फाइबर के अंदर मसल की मेम्ब्रेन को देखा जो कि सार्कोलीमा थी, उसके प्लाज्मा को देखा जो कि सार्कोप्लाज्म था, उसके अंदर एम्बेडेड स्ट्रक्चर को देखा जो कि न्यूक्लाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। देन उसके अंदर एक मायोफिब्रिल प्रेजेंट थी। मायोफिब्रिल बेसिकली जो है वो डार्क और लाइट बैंड की जो है वो सेपरेशन को शो कर रही होती है। These dark and the light band is basically extend the entire structure of the muscle fiber along. That mean कि myofibrils जो है वो along the muscle fiber जो है वो extend की हुई होती है। अब इन myofibrils के अंदर हमने light band को देखा था, dark band को देखा था। जो light band थे उसे हमने I band कहा, that is isotropic, and जो dark band था उसे हमने E band कहा, that is anisotropic. Then in the light band, in the central line is present, which is known as the Z line. अब हमने कहा था कि लाइट डार्क बैंड एक दूसरे के एडजेसेंट जो है वो अटैच्ड होते हैं। अब इन दो लाइट बैंड के दरमियान में जो जेड लाइन लाइट बैंड के दरमियान में क्या थी, सेंट्रलाइज जो है वो लाइन थी जिसे हमने क्या कहा था, जेड लाइन। अब दो जेड लाइन, दैट मीन लाइट बैंड हाफ, डार्क बैंड कंप्लीट, एंड देन देयर इज द लाइट बैंड हाफ। तो दो लाइट बैंड के दरमियान में जो सेंट्रलाइज, दो जेड लाइन के दरमियान में हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। एंड द सार्कोमेयर इज बेसिकली द functional unit of the muscle contraction. Okay. Further हम देखते हैं, the sarcomere is basically defined as the structure and the function unit of the skeletal muscle. और ये जो sarcomere थी ये क्या थी, दो जेड लाइन के दरमियान में जो है वो प्रेजेंट थी। ओके, अब हम मायोफिब्रिल से, ये पूरी मसल फाइबर की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्म दिखाई हुई है, मायोफिब्रिल दिखाई हुई है। मायोफिब्रिल को हमने डार्क और लाइट बैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। फिर हमने लाइट बैंड को कहा कि उसके सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे जेड लाइन कहते हैं, और दो जेड लाइन के दरमियान में सार्कोमेयर होती है। दैट मीन के half light band, complete dark band, and then half light band. These two Z lines and two discs combine to form the sarcomere. Okay, so there is also present the H zone in the middle of the dark band. Okay, डार्क बैंड के में एक थोड़ा सा लाइटर जोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये लाइटर जोन क्या है, इस लाइटर जोन के सेंटर में एक लाइन होती है जिसे हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने लाइट बैंड के सेंटर लाइन कही थी दैट विल बी द जेड लाइन, और जो हमने डार्क बैंड के सेंटर में जो लाइन कही है दैट इज एम लाइन, और यहाँ पर जो लाइटर जोन मौजूद है दैट इज बेसिकली द एच जोन। एच जोन इज बेसिकली the structural area in which the lighter zone filaments are not present. Okay, इसको हम फर्दर आगे भी जो है वो देखते हैं किस तरह से। उससे पहले हम देख लेते हैं कि what are basically the electron microscope structure। अब यहाँ तक हमने बात की लाइटर बैंड की, डार्कर बैंड की, जेड लाइन की, एम लाइन की, दो जेड लाइन के दरमियान में सार्कोमेयर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रक्चर सार्कोमेयर की ही दिखाई हुई है, क्योंकि सार्कोमेयर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द मसल। ओके, अब हम एक चीज और क्लेरिफाई कर लेते हैं कि जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड, आई बैंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये जो हमें नजर आ रहा है ये एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, और ये जो नजर आ रहा है दूसरी साइड पे ये भी हमारा एक क्या है, आई बैंड का एक्टिन फिलामेंट है। और ये जो मायोसिन है, जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ मायोसिन। ओके, तो डार्क बैंड को हमने क्या कहा था, ए बैंड। अब इस वजह से ये हमारा ए बैंड है, और ए बैंड के सेंटर में जो लाइन थी उसे हमने एम लाइन कहा था। अब यहाँ पे हमने एच जोन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। मायोसिन में जो लाइटर पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली द एच जोन। एच जोन वो एरिया होता है जहाँ सार्कोमेयर का या मायोसिन का जहाँ पर एक्टिन के फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम सार्कोमेयर को डिफाइन कर रहे थे कि दो जेड लाइन मीन के हाफ एक्टिन
or one half actin and one to full myosin form the structure and the functional unit of the muscle, which is basically the sarcomere. So we can say the sarcomere is form of complete myosin and half one half actin from one side and one half actin from the other side, and that portion of the myosin where actin filament will not present, this is basically known as the edge zone. अच्छा, अब ये जो लाइटर पोर्शन है इसका क्या फायदा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यही फिलामेंट इस एच जोन में आएंगे, यही जेड लाइन आपस में क्लोज हो जाएंगी, यही जो पोर्शन है, जो लाइटर पोर्शन है, ये फिल हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन होगा या इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, या जो भी उसकी जो है वो फंक्शनिंग होगी। तो हम मसल फाइबर को उसके एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख रहे हैं कि किस तरह से एक मसल का एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप ये देखेंगे कितने मसल के वेसिकल्स हैं जिसके अंदर मसल के फाइबर मौजूद हैं, तो जब वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किस तरह का जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शो करते हुए अपनी फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा सा अब मैं आपको बता, हमने देखा मायोफिब्रिल, डार्कर लाइट बैंड, जेड जोन, एम लाइन, जेड लाइन, एच जोन, ठीक है, देन ए आई बैंड जो कि एक्टिन से बना था, देन मायोसिन से बना था। अब ये एक्टिन और मायोसिन बेसिकली क्या है? दीज आर बेसिकली द एक्टिन फिलामेंट इज बेसिकली अ थिन फिलामेंट विद अ डायमीटर ऑफ 20 ऑनस्ट्रॉन। आप देखेंगे कि कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता डायमीटर जो है वो कम होता जा रहा है। अब हम फिलामेंट के लेवल पे आ गए हैं, एक्टिन फिलामेंट के लेवल पे आ गए। जो मायोसिन है उसका डायमीटर 115 ऑनस्ट्रॉन है। एक्टिन फिलामेंट इज बेसिकली द basic structure of the I band, and myosin is basically the basic filament of the A band. और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि I और A band क्या है। I band that is the lighter band and A band that will be the thicker band. अब बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसको मजीद जो है वो डीप उसमें जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जो मायोसिन है वो उसके हेड अटैच करता है एक्टिन के हेड के साथ, ये मायोसिन है। अभी हम इसकी फर्दर स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर, कि फर्दर जो है वो एक्टिन जो है वो किस चीज से मिलकर बनी है और मायोसिन जो है किस चीज से मिलकर बनी है। अभी आप ये देख लें कि व्हाट इज बेसिकली द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अकॉर्डिंग जो मायोसिन है, मायोसिन जो कि डार्कर बैंड की मायोसिन है, वो बेसिकली अटैच करती है एक्टिन के साथ, और वो एक्टिन को जो है वो सेंटर में जो है वो एम लाइन की तरफ जो है वो कंट्रैक्ट करती है, उसको खींचती है। जैसे ही वो एम लाइन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो जेड लाइन, जो एच जोन है वो फिल हो जाएगा, जेड लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। जब जेड लाइन अप्रोच करेंगी the ends of the myosin filament, so the H zone and the I band are shortened during the contraction of the muscle, and during the relaxation of the muscle, the actin filament and Z line back to the original position. इस लाइन के अंदर हम देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एच जोन वो जोन था जिसके अंदर हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। यही जोन जो है वो कंट्रैक्शन में बेसिकली अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। क्या होता है? दो एक्टिन, अब ये अब कितने ही एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के एडजेसेंट इंटरसेक्टराइजेशन पड़ी होंगी, कितने ही फिलामेंट्स आपस में बने होंगे, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस एच जोन को कवर करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा कैसे? ये मायोसिन है, मायोसिन का हेड एक्टिन के हेड के साथ अटैच करेगा, इसको सेंट्रलाइज्ड एम लाइन की तरफ जो है वो खींचेगा। जब इधर से भी ये खींच के इधर आएगा, इधर से भी ये खींच के जो है वो सेंट्रल एम लाइन की तरफ करेंगे, जो कि एच जोन के सेंटर में प्रेजेंट है। तो क्या होगा? जेड लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और साथ में एच जोन जो है वो शॉर्टन हो जाएगा और कंट्रैक्शन हो जाएगी मसल। ओके, अब हम थोड़ा सा और जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर के ऊपर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखें। हम कहते हैं कि जो मायोसिन था, मायोसिन कहाँ प्रेजेंट था? थिक बैंड में प्रेजेंट था। मायोसिन जो स्ट्रक्चर है, जो थिक फिलामेंट है, जो थिक बैंड है,
वो बेसिकली मायोसिन से नीचे बना है। मायोसिन जो है वो फर्दर टू पोर्शन में है। उसका एक हेड है और एक उसकी टेल है। टेल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की है। जो हेड है, हेड का पोर्शन है, उसके ऊपर एक तो एक्टिन के साथ अटैच होने की सलाहियत है, दूसरा उसके अंदर एटीपी के साथ भी अटैचमेंट का साइट मौजूद है। ओके, तो basically the myosin filament has the two portion, that is the tail portion and the head portion, and the head portion has the two sides. One is for the ATP and other is for the myosin, tropomyosin side. ठीक है, myosin head है, that is has a side to attach with the actin filament. ठीक, अब कहाँ हमने मसल फाइबर से स्टार्ट किया था, कहाँ हमने मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को देखा था, कहाँ पे हमने जो है वो मायोफिब्रिल को डार्कर और लाइटर बैंड में कन्वर्ट किया था, फिर कहाँ हमने कहा था कि लाइटर बैंड में जो है वो जेड लाइंस होती हैं और डार्कर बैंड के सेंटर में एम लाइन होती है, एस जून होता है, और फिर जो लाइटर बैंड होता है, अब हम उस लाइटर बैंड को देख रहे हैं कि बेसिकली जो लाइटर बैंड है वो बेसिकली एक्टिन फिलामेंट का बना है, और जो मायोसिन जो डार्कर बैंड है वो मायोसिन फिलामेंट का बना है। फिर हम कह रहे हैं कि मायोसिन फर्दर टू पोर्शन में टेल और हेड का पोर्शन है। अब हमने जैसे कहा था कि एक्टिन स्लाइडिंग ऊपर फिलामेंट मॉडल के अंदर कि एक्टिन जो है वो बेसिकली क्या करती है, मायोसिन जो है वो एक्टिन के हेड को खींचती है सेंट्रलाइज एम लाइन की तरफ, जेड लाइन क्लोज होती है, एस जून गायब हो जाता है। तो वही हेड को जो है वो हम शो कर रहे हैं कि टेल पोर्शन है, हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन में एक्टिन के साथ अटैच होने की साइट है और एटीपी के साथ अटैच होने की साइट है। ओके, इसी तरह अब मायोसिन, मायोसिन भी फर्दर मायोसिन का मॉलिक्यूल एक्टिन, वो तो मायोसिन थी, दैट विल बी द मायोसिन, मायोसिन contain the head and the tail portion, और मायोसिन is basically the darker band area, and then there will be the actin filament. The actin filament are basically composed of the F-actin and the G-actin. Each F-actin molecule has an active site to which the myosin head is attached. Okay, so uh, further we can see here the filament, which is basically composed of actin filament. So the actin molecule is basically further composed of three types, three further categories, and these three further categories are further divided, we can see here. अब वो जो लाइटर बैंड था वो एक्टिन फिलामेंट का बना था। जो एक्टिन फिलामेंट था उसके अंदर पहले नंबर पे एफ एक्टिन प्रेजेंट होती है। एफ एक्टिन के अंदर ये जो गोल गोल आपको बीड्स नजर आ रहे हैं, ये बीड्स जो हैं वो जी एक्टिन होते हैं। ये जी एक्टिन आपस में मिलते हैं तो एफ एक्टिन बनता है, फिलामेंट एक्टिन बनता है। एफ एक्टिन इज बेसिकली फिलामेंट एक्टिन। तो आप कहेंगे कि जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है बेसिकली मेड अप ऑफ एफ एक्टिन। सेकेंड वन इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ये जो एफ एक्टिन को कवर करती हुई लाइन है, जो कवर करती हुई लाइन है, दैट इज बेसिकली ट्रोपोमायोसिन। ये जो आपको पर्पल में लाइन ऐसे जैसे डीएनए का होता है ना आपस में क्रॉस लिंक, वो बेसिकली ये ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा होता है, ये एक्टिन एफ एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है उनको क्लोज कर रहा होता है इन द नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में, कि इसके साथ मायोसिन के जो हेड से वो अटैच ना हो सके। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन का एक साइड जो है वो ट्रोपोनिन की एफ एक्टिन के साथ अटैच होती, ठीक है, दैट इज द आई साइड, and there is C side and D side. The C side is basically attached with the calcium ion, और ये calcium ion के साथ उस टाइम पे अटैच होती है जब जो मसल है वो अपना फंक्शन जो है वो इनिशिएट करना स्टार्ट करता है, एक कंट्रैक्शन का जो है वो सिग्नल आ चुका होता है। सी ट्रोपोनिन की जो है वो बाइंडिंग होती है कैल्शियम के साथ। तो सी ट्रोपोनिन इज first of all, we say the actin filament is basically made up of the actin, tropomyosin, and troponin. The actin is basically the major globular structure of actin filament actin. Then ये जो actin थी इसकी एक्टिव साइट को कवर किया हुआ था tropomyosin ने। अब यहाँ पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट था। इसके अलावा थर्ड नंबर पे ट्रोपोनिन की फर्दर थ्री साइड थी। एक तो वो साइड उस एक्टिन के साथ अटैच हो रही थी, दूसरी जो साइड है वो कैल्शियम के साथ अटैच हो रही थी, और जो तीसरी साइड है दैट विल बी अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन।
अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जब स्लाइडिंग होती है तो किस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर जो है ये स्लाइडिंग हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको थिक फिलामेंट नजर आ रहा होगा। ठीक, अब ये जो थिक फिलामेंट के हेड हैं ये बेसिकली किसके साथ, ये जो ऊपर है ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट बेसिकली एपेक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन से और ट्रोपोनिन से बनके बना है। ट्रोपोनिन की फर्दर 3 साइड थी। एक साइड जो है वो एपेक्टिन के साथ अटैच थी, दूसरी साइड जो है वो कैल्शियम के साथ अटैच होगी और तीसरी साइड किसके साथ अटैच होगी, तीसरी साइड जो है वो किसके साथ उसकी अटैच थी, ट्रोपोमायोसिन के साथ, एफेक्टिन के साथ और कैल्शियम आयन के साथ। दैट मीन कि ये जो ट्रोपोमायोसिन जिसने एफेक्टिन को कवर किया हुआ था उसके साथ अटैच है, एक एफेक्टिन के साथ अटैच है और तीसरी कैल्शियम के साथ अटैच है ट्रोपोनिन की, तो कि थर्ड कंपोनेंट था एक्टिन का, लाइटर बैंड का। ठीक? अब जो ये हेड है ये बेसिकली स्लाइडिंग में जब ये कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है तो ये अटैच करते हैं एक्टिन के साथ। एक्टिन को जो है वो सेंट्रलाइज्ड खींचते हैं एम लाइन की तरफ। ये जो जेड लाइन थी एक्टिन की वो आपस में क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, और जब वो क्लोज होते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है। हम इसको आगे भी देखते हैं, यहाँ तक आप लोग सिर्फ इतना समझ रहे हैं। और यहाँ पर हमने कहा था कि मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट का पार्ट था उसके ऊपर एटीपी की बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है। After that, we can see what are basically the structure anatomy of the skeletal muscle, connective tissue, muscle fascia, blood vessels, nerves. Okay, muscle fascicles, connective tissue जिसने कवर किया हुआ था muscle fascicles को। Muscle fascicle are composed of muscle fascicle क्या थे, bundle of muscle fibers थे। वो muscle fibers फिर फर्दर क्या कंटेन करे थे, सार्कोनीमा, ट्यूब्यूल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मल्टीपल न्यूक्लियाई। ओके, मसल फाइबर का जो मसल सार्कोलीमा था जिसने उसको कवर किया हुआ था, उसके बाद उसमें सार्कोप्लाज्म था, सार्कोप्लाज्मा के साथ यहाँ पे टी ट्यूब्यूल, सार्कोलीमा एंड मल्टीपल न्यूक्लाई भी जो है वो प्रेजेंट थे। उनको हम फर्दर जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये सार्कोलीमा, सार्कोलीमा जिसने कवर किया हुआ था मसल फाइबर को, सार्कोप्लाज्म जो कि सार्कोलीमा के अंदर प्रेजेंट था। सार्कोलीमा के साथ इसके बाद हमारे पास टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज टी ट्यूब्यूल, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं आपको आगे बताती हूँ ये क्या होती है। इसके बाद हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया मायोफिब्रिल्स को बेसिकली डिस्कस किया, बिकॉज द मायोफिब्रिल्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो है वो फिलामेंट। And then actin is basically the thin filament, and the thick filament is basically the myosin. And then the myosin, ओके, मायोफिब्रिल्स को हमने कहा था कि लाइटर और डार्कर बैंड होता है। जो लाइटर बैंड था वो बेसिकली एक्टिन था और जो थिक बैंड था that will be the darker band, that will be also known as the A band, and an isotropic band, it will be made up of the myosin filament। और जो एक्टिन था वो बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ था, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, थिन फिलामेंट बना रहे थे। तो थिन फिलामेंट के पार्ट कौन कौन से थे, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो थिन फिलामेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ these 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हमारे पास टाइटन होते हैं, नेबुलिन होते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट प्ले आल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद इन थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ने आपस में मिलकर क्या बनाया था, सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर इज बेसिकली द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन से कि किस तरह से हम एक हाई लेवल से जो है लो लेवल की तरफ आए हैं। मसल बोन है, टेंडन है, मसल मास है, मसल फेसिकल्स हैं, मसल फेसिकल्स के अंदर मसल की फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर आप देख सकते हैं ये मसल की जो है वो मेम्ब्रेन है, दैट इज द सार्कोलीमा। एंड देन उस मसल फाइबर के अंदर किस तरह से मायोफिब्रिल्स जो है वो अरेंज्ड हैं, 1 2 3 4 मायोफिब्रिल्स। एंड दीज मायोफिब्रिल्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ द lighter and the darker band. And further we can see here the green portion you can see here, and the green portion which is shown here, these are basically the lighter band, darker band, and then the purple portion you can see here is the basically the lighter band। और जो ये darker band था ये क्या था,
मायोसिन फिलामेंट से मिलकर बना था, और जो ये लाइटर बैंड था ये एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बना था। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट था, इसके सेंटर में जो पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, सॉरी ब्लू लाइन, जो आपको पर्पल में ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज बेसिकली द Z, और जो डार्कर बैंड के सेंटर में जो है वो व्हाइट लाइन इसमें नहीं शो की हुई, बट दैट विल बी द एम लाइन। अब दो जेड लाइन के दरमियान में आपको सार्कोमियर दिखाया हुआ है। ये जो सार्कोमियर है आप यहाँ से देखें, दैट इज बेसिकली द सार्कोमियर विच इज the structure and the function unit of the muscle, and it is basically made up of two Z line, and Z line half जो है वो actin, half actin and complete myosin। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड मायोसिन है ये एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है, एम लाइन की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। जैसे ही जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, ये जो एच जोन का पोर्शन है, ये जो एच जोन का पोर्शन है जिसके अंदर एक्टिन के फिलामेंट की एंडिंग प्रेजेंट नहीं है, ये क्लोज हो जाएगा, साथ में कंट्रैक्ट कर जाएगा, जेड लाइन भी एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल विल टेक प्लेस। Now in this diagram we can see here what is basically the sarcotubular system. What is sarcotubular system? Sarcotubular system basically composed of closed form, you can say as the membranous structure or tubules. These are basically it's surrounded with the myofibrils which is embedded in the sarcoplast. जो मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स जिसके अंदर लाइटर और डार्कर बैंड थे, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट थे जो कि रोल प्ले कर रहे थे कंट्रैक्शन का, वही जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है, ये सार्कोट्यूबुलर सिस्टम बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो प्ले कर रही है रोल, किसके अंदर रोल जो है वो प्ले। ओके, सो जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है, जैसे कि सार्कोलीमा है, जो सार्कोलीमा है वो क्या है, बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड कर रही है मसल फाइबर को। ठीक, अब जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है बेसिकली ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि इम्बेडेड हो रही है, धंस रही है किसके अंदर, मायोफिब्रिल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है बेसिकली ये जो है इनिशियल एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर जो है वो उस मैकेनिज्म को लेके जाता है, वो हम फर्दर देखते हैं कि क्या है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने ये समझना है कि व्हाट आर बेसिकली द टी ट्यूब्यूल्स एंड द एल ट्यूब्यूल्स। द सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ टी ट्यूब्यूल्स एंड द एल ट्यूब्यूल्स। जो टी ट्यूब्यूल्स हैं दैट इज बेसिकली द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स and narrow tubules formed by invagination of the sarcolemma। तो सार्कोलीमा वो मेम्ब्रेन जिसने मसल फाइबर को जो है वो कवर किया हुआ था, उसकी इन्वेजिनेशन होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सार्कोलीमा की जो इन्वेजिनेशन हो रही है, जो उसका धंस रही है, these tubules is basically known as the T tubules। ओके, और ये पूरे मसल फाइबर्स के अंदर जो है वो एक्सटेंड किए हुए होते हैं। और जो एल टिब्यूल्स हैं, ठीक है, एल टिब्यूल्स जो है ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ये उसकी लॉन्गिट्यूडनल जो है वो मायोफिब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल जो है वो लॉन्ग एक्सिस में जो है ये एक्सटेंड करती हैं, और ये क्लोज ट्यूब्यूल्स होती हैं, जबकि टी ट्यूब्यूल्स जो है ये बेसिकली ओपन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक, these tubules have a form of closed tubular system around each myofibril and do not open to exterior like a T tubule। तो अगर आप यहाँ पे देखें, टी ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या है, सार्कोलीमा की इन्वेजिनेशन है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और जो सार्को दैट मींस द टी ट्यूब्यूल, एंड जो कि हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज बेसिकली द एल ट्यूब्यूल, ये भी जो है वो इन्वेजिनेशन है बट ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। और जो टी ट्यूब्यूल एल ट्यूब्यूल का डिफरेंस है, टी ट्यूब्यूल ओपन है जबकि एल ट्यूब्यूल जो है ये क्या है, क्लोज्ड फॉर्म में। उसके साथ ही अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जल्दी से इसको मैं वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ, आपकी लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड हो गया कि व्हाट आर बेसिकली द फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होती है फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजिकल कंट्रैक्शन बेसिकली वो मैकेनिज्म है बॉडी का जिसमें हमारी मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल्स भेजते हैं हमारे मसल के फाइबर्स को, हमारी मसल को, कि वो कंट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें। ठीक, क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है ना, हमारी माइंड कंट्रोल कर रहा है किस चीज को, हमारी मसल को। ठीक, तो वो जो माइंड से जो सिग्नल्स आएंगे थ्रू मोटर न्यूरॉन, वो जो सिग्नल इस मसल में किस तरह से जो है वो डिलीवर होंगे,
और उस डिलीवरी के बाद कौन सा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा, वो किस तरह से होगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ये इवेंट्स हैं, इन्होंने इस इवेंट्स को एटलीस्ट 3 जो है वो उसमें डिवाइड कर दिया कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, हमें पता है कि एक नर्व दूसरी नर्व के साथ या एक नर्व किसी मसल के साथ जब अटैच करती है तो दरमियान में एक साइनेप्स बनता है। साइनेप्स को आप इस तरह से ले सकते हैं कि बेसिकली ये एक सेल की दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट और दरमियान में जो स्पेस है वो स्पेस आप कह लें साइनेप्स होती है। तो नर्व से मसल में जो मोटर न्यूरॉन के सिग्नल की ट्रांसमिशन है, दैट विल बी द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। Synaptic transmission at the neuromuscular junction. What is neuromuscular junction? Neuromuscular junction is the junction between the neuron and the muscle. मीन के मसल और न्यूरॉन के दरमियान में जो अटैचमेंट के दरमियान में जो जंक्शन है, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे होते हैं, तो वो जो अटैचमेंट है उसके दरमियान में जो स्पेस है, दैट इज बेसिकली द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, एक मसल की मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि जो मसल नर्व्स होते हैं ये नर्व मसल के अंदर घुसी हुई होती है। तो जब ये मसल के अंदर क्लोज टू मसल फाइबर जानती हैं तो इसके ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। जब माइलिन शीट रिमूव होती है तो जितने भी सिग्नल जो है वो मसल फाइबर के लेवल तक पहुंचेंगे तो वो डायरेक्टली एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। दूसरी बात ये, ओके, अब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक नर्व से मसल में जितने भी सिग्नल्स जा रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो किस तरह से जा रही है। तो यहाँ पे एक साइनेप्स बनता है, साइनेप होता है, उसको मैं आपको आगे बताती हूँ कि कौन सी होती है, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, किस किस को हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो प्रोसेस होता है, दैट इज एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, एंड थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन साइकिल। एक्साइट होना मसल का और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म का स्टार्ट होके उस एक्साइटेशन के साथ कपल करना एंड देन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल का रन करना, दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। वही एक्टिन का मायोसिन के साथ जो अटैचमेंट थी, दैट विल बी द स्लाइडिंग थ्योरी। तो ये 3 मैकेनिज्म जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। कौन कौन से? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मोटर न्यूरॉन से मसल में जो है वो इंफॉर्मेशन जाना, मसल फाइबर की एक्साइटेशन होना, ठीक है, और उसकी कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना, और देन कंट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होना, ठीक है। क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें अपने रिलैक्सेशन फेज में मस्ट जाना होता है, अगर वो रिलैक्सेशन फेज में ना जाए तो मसल चिड़चिड़ हो जाती है, जैसे मसल अकड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर बेसिकली द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द स्केलेटल मसल। तो फर्स्ट हमारा था कि किस तरह से जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और मसल की मेम्ब्रेन के दरमियान में किस तरह से जो है वो सिग्नल का जो है वो ट्रांसफर होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल नर्व की एंडिंग की मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, तो जो नर्व की एंडिंग की मेम्ब्रेन होती है वहां पे कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और जो साइनेप्स होता है, जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो पोर्शन होता है, दैट इज साइनेप्स। तो जो साइनेप्स के अंदर कैल्शियम होती है वो उस कह लें कि जो नर्व एंडिंग है मेम्ब्रेन उसके अंदर एंटर करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो नर्व की एंडिंग के अंदर एंटर करती है कैल्शियम, तो एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है नर्व एंडिंग में, वो रिलीज होता है साइनेप्स में, उसी सेंटर वाले पोर्शन में दो मेम्ब्रेन के लिए। ये जो साइनेप्स में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, दैट इज बेसिकली साइनेप्टिक क्लफ्ट between two membrane, then there is the post synaptic membrane। ये post synaptic membrane जो है ये मसल की मेम्ब्रेन होगी। अब ये मसल की मेम्ब्रेन के साथ एसिटाइल कोलिन जाके अटैच करेगा और वहां पे ओपन करेगा सोडियम के चैनल्स को। जैसे ही सोडियम के चैनल जो है वो उस मेम्ब्रेन में ओपन होंगे, सोडियम जो है वो बाहर आएगा, कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, या कैल्शियम जो है वो एक्शन एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन की
सोडियम का आयंस का ट्रांसफर है, आयंस का जो रद्दोबदल है, ये इसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। किसके अंदर? नर्व से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो अब मसल के अंदर आयंस के ट्रांसफर की वजह से एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर चुका है। ठीक, अब जो है वो फर्दर एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग और देन फर्दर जो है मसल के अंदर क्या होगी? मसल की कंट्रैक्शन होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक वीकनेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास जो है वो नर्व की एंडिंग थी, टर्मिनल पोर्शन थे। ये जो नर्व की एंडिंग थी ये मसल फाइबर के लेवल तक पहुंची हुई है। ठीक है, मसल के अंदर मसल फाइबर के लेवल तक पहुंची हुई है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर माइलिन शीट जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब ये जो सार्कोलीमा है मसल की मेम्ब्रेन है, और ये जो नर्व की मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनती है, और ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही मोटर न्यूरॉन नर्व की एंडिंग में एक्शन पोटेंशियल को भेजती है, तो ये जो नर्व की एंडिंग की मेम्ब्रेन है, ये जो नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन है, इसमें जो है वो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करते हैं। कैल्शियम जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर मौजूद एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स के साथ जो है ये कैल्शियम बाइंड करेंगे, और वेसिकल से एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होकर सेल की मेम्ब्रेन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या थी? दो मेम्ब्रेन के दरमियान में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब प्री मीन के जहां से सिग्नल भेजना है, पोस्ट मीन जहां जाना है। अब एसिटाइल कोलिन जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वही हमारी मसल की मेम्ब्रेन, दैट विल बी द सार्कोलीमा। उसके साथ ये एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करता है। ठीक है, इसमें निकोटीन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन जो है वो इसके रिसेप्टर के साथ जाके अटैच करता है, यहाँ पे ये सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम जो है वो एंटर करती है, और सोडियम की और आयंस का जो है वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये डिफरेंस जो है वो बेसिकली एक्शन को जो है वो जनरेट करता है, और ये लोकल करंट जो है वो अब मसल की जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर पहुंच चुका है। अब मसल की मेम्ब्रेन से मायोफिब्रिल्स में किस तरह से जाएगा, हम उसको देखते हैं। ठीक है, दैट इज आवर सेकंड पोर्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल कंट्रैक्शन, दैट इज द एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कंप्लीट। एक्साइटेशन ऑफ द मसल फाइबर। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन को साइनेप्टिक मसल की फाइबर के साथ जाके अटैच किया, सोडियम के चैनल को ओपन किया, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक्शन पोटेंशियल जो है वो मसल फाइबर में पहुंच चुका है। अब यहाँ से जो मसल फाइबर है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये टी ट्यूब्यूल, याद है आप लोगों को टी ट्यूब्यूल कभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो सार्कोलीमा थी वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इमेजिनेट की हुई थी। टी ट्यूब्यूल्स ओपन ट्यूब्यूल्स थे। ठीक, अब वो जो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलीमा में प्रेजेंट था, सार्कोलीमा वही मेम्ब्रेन जो मसल फाइबर को राउंड किए हुए, और सार्को टी ट्यूब्यूल वही इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलीमा, कहाँ कौन से लेवल तक? मायोफिब्रिल्स के लेवल तक। ठीक है, मायोफिब्रिल्स के राउंड तक। ठीक है, तो वो जो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलीमा मसल फाइबर की मेम्ब्रेन में जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो है वो ट्रांसफर हुआ है, अब वो जो है वो इन टी ट्यूब्यूल्स में आ गया, और इन टी ट्यूब्यूल्स से कहा मायोफिब्रिल्स के लेवल में चला जाएगा। किस तरह से जाएगा? बेसिकली यहाँ पे सिस्टर्ना जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल फाइबर के अंदर, जो कि सिक्रीट करते हैं कैल्शियम को, और ये वही कैल्शियम है जो कि रिलीज होगी, और मायोफिब्रिल में जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट था जिसके ऊपर ट्रोपोनिन मौजूद थी। अगर आप इसको रिवाइज आप इस लेक्चर को देखें, हमारा एक्टिन फिलामेंट 3 चीजों से मिलकर बना था, ट्रोपोमायोसिन से, एफ फिलामेंट से और ट्रोपोनिन से। अब ट्रोपोनिन फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था। कौन कौन से 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था? एक साइड 3 साइड थी उसकी, एक साइड ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच थी, दूसरी साइड उसकी उस ट्रोपोनिन की जो है वो एफ फिलामेंट के साथ अटैच थी, और तीसरा उसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइड थी। वो कैल्शियम बाइंडिंग साइड, अब ये जो कैल्शियम मसल फाइबर के अंदर सिस्टर्ना से रिलीज होती है, सिस्टर्ना से रिलीज होने के बाद यही कैल्शियम उस एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन कंपोनेंट के साथ जाके अटैच करती है।
और जैसे ही ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच करेगी, जो ट्रोपोमायोसिन जिन्होंने एफ फिलामेंट के एक्टिव साइट को एफ फिलामेंट के साथ एक्टिव साइट को राउंड किया हुआ था, वो ट्रोपोमायोसिन पीछे की तरफ धकेली जाएंगी। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन पीछे होगी, एफ फिलामेंट के ऊपर एक्टिव साइट शो हो जाएंगी। जैसे ही एक्टिव साइट शो होंगी, ट्रोपोमायोसिन जिसका हेड ऑलरेडी रेडी था एक्टिव फिलामेंट के एक्टिव साइट के साथ कंबाइन होने के लिए, वो फौरन से उसके एक्टिव फिलामेंट के एक्टिव साइट के साथ जाके मायोसिन के जो फिलामेंट थे, मायोसिन का जो हेड था, वो एक्टिन के साथ जाके अटैच करेगा और उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो अब हमने बेसिकली जो देखा, सार्कोलीमा के लेवल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जब सार्कोलीमा के लेवल पे गया, सार्कोलीमा के लेवल पे जाके वो टीट्यूब्यूल्स में गया, टीट्यूब्यूल्स से सिस्टर्ना से कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम ने मायोफिब्रिल्स की एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के सी साइड के ऊपर जाके जो है वो अटैच किया ट्रोपोनिन सी के साथ, और वहां से उसने ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोमायोसिन को धकेला है, जिससे एक्टिन फिलामेंट के एफ फिलामेंट शो हुआ है। जैसे ही एफ फिलामेंट शो हुआ है, तो जो मायोसिन है उसका जो हेड है वो उस एक्टिव साइट के साथ एक्टिन के साथ जो है वो अटैच करेगा। सो द कंट्रैक्शन बेसिकली दैट इज बेसिकली द स्टार्टिंग मैकेनिज्म, जो कि मैं आपको एंड तक जो है वो बता चुकी हूँ। इसको फिर हम मजीद देख लेते हैं। अब यहाँ से जो है वो हमारे पास क्या थे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो है वो मसल सार्कोलीमा में सिग्नल आ गए, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलीमा से टीट्यूब्यूल्स। अब ये जो टीट्यूब्यूल्स हैं, इस टीट्यूब्यूल से सिस्टर्ना जो कि प्रेजेंट है मसल फाइबर के अंदर, इस सिस्टर्ना ने कैल्शियम को रिलीज किया है। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है ये फर्दर जाके अटैच कर रही है ये मायोफिब्रिल्स के ऊपर, मायोफिब्रिल्स के कौन से पार्ट के ऊपर, एक्टिन के पार्ट के ऊपर। ओके, अब ये जब एक्टिन के पार्ट के ऊपर जाके करेगी, तो जो एक्टिन के पार्ट के ऊपर जाके जैसे ही ये एक्ट करेगी, एक्टिव साइट जो है वो शो हो जाएंगे। इसको हम आगे भी आपको बता देती हूँ। तो द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द स्टर्ना। अब हमारा तीसरा प्रोसेस, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल। जो पिछला था दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कपलिंग। किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम आयंस का रिलीज होने से। किस तरह से कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं, किस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हमारे पास तीसरा है, उस मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं कि रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सिस्टर्ना ऑफ द एल्डिव्यूल, बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आयन विद द ट्रोपोनिन, ठीक है, पुलिंग ऑफ द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल, वही एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल पुल हो गया है, एफ एक्टिन साइट एक्सपोज हो गई है। अब अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड हो गई है एक्टिन के साथ, तो मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच कर गई है, पावर स्ट्रोक हुई है यहाँ पे। अब उन जो हेड थे जिन्होंने अटैच किया था मायोसिन के हेड में एक्टिन के फिलामेंट के साथ, वो इसको ड्रैग करेंगे सेंट्रलाइज की तरफ। जैसे ही detachment of the myosin head and returning to the original position, and the attachment of the myosin head to the new active site of the F filament, and the movement of the active filament of the both side towards each other, and formation of ectomyosin complex, and the contraction of the muscle will occur. So अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड एंड रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये सारा जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि पावर स्ट्रोक जो जनरेट हुआ था मायोसिन हेड के ऊपर, और उसने ड्रैग किया था एक्टिन फिलामेंट को। एक्टिन फिलामेंट को जब वो ड्रैग करता है तो उसके साथ उसकी डिटैचमेंट हो जाती है, और उसके बाद जो है जो एक्टिन मायोसिन का हेड है वो दोबारा से न्यू एक्टिन के जो है वो के हेड के साथ अटैच होने के लिए रिपीटेड प्रोसेस में चला जाता है। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट होती है मायोसिन की जो है वो सेंट्रलाइज की तरफ, और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल हो जाती है। इसमें थोड़ा सा ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास ये मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है, that is basically thick filament, that is basically the thin filament. Thin filament is basically made up of the actin filament. The actin filament has three portion, that will be the F filament. ये जो beads हैं ये F filament है, ये जो beads के ऊपर लाइन है ये हमारे पास जो है वो ट्रोपोमायोसिन की लाइन है, और ये ट्रोपोमायोसिन के साथ ट्रोपोनिन प्रेजेंट है जिसके अंदर कैल्शियम बाइंडिंग साइट।
अब फर्स्ट क्या होता है, कैल्शियम लेवल जो है वो मायोफिब्रिल्स के लेवल के ऊपर इंक्रीज कर गया है, क्योंकि जो सिस्टर्ना जो है वो मतलब फाइबर के अंदर प्रेजेंट थी, एक्शन पोटेंशियल की वजह से उन्होंने कैल्शियम को रिलीज कर दिया है। अब वो कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच हो गया, जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच हुई है, आप सेकंड जो है वो लेवल पे देखें, इसके साथ हेड के साथ एटीपी भी जो है वो प्रेजेंट है। अब जैसे ही अटैचमेंट हुई है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम जो है वो बाइंडिंग कर रही है ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ अटैच किया है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक साइड पे हो गई है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन एक साइड पे हो गई है, यहाँ पे एटीपी साइड जो है वो प्रेजेंट है। तो जो हेड है इसने एक्टिन के साथ जाके अटैच कर लिया है। जैसे ही हेड की एक्टिन के साथ जाके अटैचमेंट हुई है, तो एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया है, और एक्टिन ने मायोसिन ने इस एक्टिन के ट्रोपोमायोसिन को अपनी तरफ सेंट्रल में खींचा है। जैसे ही सेंट्रल में खींचा है, तो एच जोन जो था हमारा सेंट्रल में, मायोसिन के सेंटर में एच जोन जो है वो फिल हो गया है। डेड लाइन क्लोज आ गई है। डेड लाइन क्लोज आने की वजह से हमारा जो सार्कोमेयर है उसका कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्शन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। अब ये आफ्टर दिस द मसल विल आल्सो गो टुवर्ड द एल्टिट्यूड, टुवर्ड द रिलैक्सिंग फेज। रिलैक्सिंग फेज में कैसे जाएगा कि पंपिंग बैक हो जाएगी कैल्शियम आयन की एल्टिट्यूड। डिक्रीज इन द सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम कंटेंट, वो जो टी ट्यूब्यूल और जो एल टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल की जो फॉर्म थी सार्कोप्लाज्मिक, उसकी कैल्शियम का कंटेंट खत्म हो गया। जैसे ही कैल्शियम का कंटेंट बैक गया है, ठीक है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ट्रोपोनिन फ्री हुआ है, डिटैचमेंट होगी। जैसे ही कैल्शियम खत्म हुई, तो कैल्शियम के खत्म होने की वजह से जो फिलामेंट है उसकी ट्रोपोमायोसिन दोबारा से उसको एक्टिव साइट को कवर कर लेंगी। जैसे ही वो एक्टिव साइट को कवर कर लेंगी, तो जो हमारा एक्टिन है वो मायोसिन है वो एक्टिन, मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ नहीं कंबाइन करेगा, और वो फर्दर जो है वो रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा। ये पूरी एक डायग्राम है जिसके जरिए जो है वो हमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा बताया गया है। इस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ कि किस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल के ऊपर आप देखते हैं। नर्व में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो मसल की मेम्ब्रेन है दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये व्हाइट पोर्शन है ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब फर्स्ट पे क्या हुआ है कि नर्व इम्पल्स जो है, जो कि मोटर न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स है, वो नर्व एंडिंग पे पहुंच चुकी है। नर्व एंडिंग में पहुंचने के बाद कैल्शियम के चैनल्स को उसने इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ओपन किया है, जिसकी वजह से कैल्शियम ने साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर एंटर किया है। कैल्शियम की एंट्री की वजह से ये जो एसिटाइलकोलिन के वेसिकल थे ये ब्रेक डाउन करने लग गए हैं। जैसे ही एसिटाइलकोलिन के वेसिकल ब्रेक डाउन किए हैं, एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो अंदर गई है और एसिटाइलकोलिन जो है वो बाहर आई है। अब बाहर आने के बाद वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि मसल की मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलीमा, ठीक है, उसके मसल फाइबर की मेम्ब्रेन था कोलिमा, उसके साथ जाके एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया है। मसल की मेम्ब्रेन के अंदर उसने जैसे ही एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया है, तो मेम्ब्रेन में सोडियम आयन का जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन नर्व की एंडिंग में था वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मसल की मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो गया। Acetylcholine diffuse and the synaptic cleft and bind to the receptor on the in the motor end plate and trigger the muscle action potential। तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। थर्ड एसिटाइलकोलिन कोलिन एस्ट्रेस इन सिनेप्टिक क्लेड ऑफ दी, अच्छा ओके। उन्होंने इसके बाद ये कहा ये जो एसिटाइलकोलिन है जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच करते हैं ये फुली डिस्ट्रॉय कर जाती हैं इन द सिनेप्टिक क्लेड। ओके, आफ्टर दिस वी कैन सी हियर द मसल के अंदर जो है वो क्या हो चुका है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो चुका है। अब मसल के अंदर हमने कहा था, मसल की मेम्ब्रेन के अंदर, मसल की मेम्ब्रेन क्या थी, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा जो है वो टी ट्यूब्यूल्स इन्वेजिनेशन थी, वो टी ट्यूब्यूल्स जो है वो मायोफिब्रिल्स के लेवल पे जा रही थी, दैट विल बी द डार्कर एंड द लाइटर बैंड, और द डार्कर बैंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ द myosin filament and the lighter band is actin filament. Myosin filament has the head and the tail, and the actin filament has the further three component. The calcium will bind with the troponin compound of the actin filament, and the myosin tropomyosin component which cover the S filament will pull back। तो वो जो ट्रोपोनिन के साथ ये जो कैल्शियम सार्कोलीमा में सिस्टर्ना थी, सिस्टर्ना ने कैल्शियम को रिलीज किया,
कैल्शियम जो है वो मायोफिब्रिल्स के लेवल पे ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन क्या थी, एक्टिन फिलामेंट का जो है वो पार्ट थी, उसके साथ जाके उसने अटैच किया है। जैसे ही उसने सी साइड के साथ अटैच किया है, ट्रोपोमायोसिन पीछे की तरफ हट गई है और एफ फिलामेंट एक्टिव साइड शो हो गई है। जैसे ये एफ फिलामेंट की एक्टिव साइड शो हुई है, ये जो मायोसिन के हेड है, इन्होंने जाके मायोस एफ फिलामेंट के साथ जाके अटैच किया है और एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, जिसकी वजह से ये ड्रैगिंग फोर्स जो है वो एक्ट की है। इस ड्रैगिंग फोर्स की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एक्टिन फिलामेंट है और ये जो एच जोन था, ये यहाँ पे फिल हो गया है, क्योंकि यहाँ के हेड ने भी पुल किया है, अपोजिट साइड के हेड ने भी पुल किया है, और ये सेंट्रलाइज्ड एच जोन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो 2Z लाइन थी एक्टिन फिलामेंट की, एक दूसरे के क्लोज आ गई है, और जैसे ही ये एक दूसरे के क्लोज आए हैं, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगेन जब ये कैल्शियम जो है वो रिलीज चैनल जो है वो और एटीपी जो है यूज होगा to restore the regional level structure again toward the relaxing phase. And then 8 में अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये कैल्शियम आ रही थी, इस कैल्शियम में ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कम्प्लेक्स स्लाइड बैक इन पोजीशन of the various blocks of myosin binding site and actin, और दोबारा से जो है वो क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम हुई है, इसमें उन्होंने कैल्शियम की कंसेंट्रेशन, यहाँ तक हमें कॉन्ट्रेक्शन पता चल गई। अब कैल्शियम की कंसेंट्रेशन से कम हो गई है, सिस्टर्ना ने एक्शन पोटेंशियल खत्म हो चुका है, उसके बाद सिस्टर्ना ने कैल्शियम को रिलीज करना बंद कर दिया है। ये कैल्शियम जो है वो वापस बैक जाएगी टूवर्ड द सिस्टर्ना, और जैसे ही ये कैल्शियम बैक जाएगी तो ट्रोपोनिन के जो सी साइड थी वहाँ पे कैल्शियम खत्म हो गई है। जैसे ही कैल्शियम खत्म हुई है तो ट्रोपोमायोसिन फौरन से एफ फिलामेंट को कवर कर लेंगे। जैसे ही वो एफ फिलामेंट को कवर कर गई, देयर विल बी द डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, एंड जैसे ही डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट होगी, एटीपी का मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेक डाउन होगा और ट्रोपोनिन जो है वो अपनी जो है वो रिलैक्सिंग फेज में चला जाएगा और मसल की जो है रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये पूरी डायग्राम जो है एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल की कंट्रैक्शन को जो है वो शो कर रही है। इसको मैंने आपको सेपरेटली एक एक करके भी बताया है कि किस तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिग्नल भेज रहा था मसल को, मसल में कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा था, वो जो मसल का कैल्शियम था वो एक्टिन के फिलामेंट के साथ जो है वो ट्रोपोनिन पार्ट के साथ जाके अटैच किया था, ट्रोपोमायोसिन पीछे की तरफ से चली गई थी, एफ फिलामेंट जो एक्टिन का एफ फिलामेंट था, क्योंकि एक्टिन 3 पार्ट से मिलकर बना था, ट्रोपोनिन, एफ फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आके लगी, ट्रोपोमायोसिन पीछे की तरफ हुआ, एक्टिन का फिलामेंट एफ एक्टिन जो है वो एक्सपोज हुई। जैसे ही एफ एक्टिन एक्सपोज हुई, मायोसिन को अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने जाके हेड, मायोसिन की हेड ने उसके साथ जाके एक्टिव साइड के साथ जाके अटैच किया और सेंट्रलाइज एक्टिन की जो फिलामेंट है उसको अपनी सेंटर की तरफ खींचा। जैसे ही खींचा तो जेड लाइन क्लोज आ गई, एक्टिन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये सार्कोमेयर का जो फंक्शन है ये पूरा किस तरह से कंप्लीट हुआ और किस तरह से कैल्शियम के खत्म होने की वजह से अगेन जो है वो बैक पंप हो गई है कैल्शियम ट्रोपोनिन से अगेन जो है टुवर्ड द सिस्टर्ना। एंड जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बंद हुई, एक्टिन के फिलामेंट में, एक्टिन के फिलामेंट में जो एफ एक्टिन एक्सपोज था उसको ट्रोपोमायोसिन ने दोबारा से वाइंड अप कर लिया, और वाइंड अप करने की वजह से जो एक्टिव साइट मायोसिन हेड की थी, थिक बैंड की थी, वो पोलन से थिक फिलामेंट की थी, वो क्लोज हो चुकी हैं और अब मसल दोबारा से अगेन रिलैक्सिंग फेज में जो है वो चला गया। इसके अंदर अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आई बैंड, ए बैंड हमारे पास रिलैक्सिंग फेज के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास क्या था, आई बैंड था। आई बैंड हमारे पास क्या था, डेट विल बी द लाइटर बैंड, सॉरी, आई बैंड वाज द थिकर बैंड एंड नो, आई बैंड वाज द लाइटर बैंड, ओके। और जो हमारे पास मायोसिन था, ये मायोसिन, ये है थिक बैंड, ठीक है। इसके दरमियान में एच जोन जो है वो बताया हुआ है, जिसके अंदर एक्टिन की तरह प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रलाइज लाइन बताई गई है, और दो एक्टिन की सेंट्रलाइज लाइन को हमने जेड लाइन कहा था। जैसे ही ये दूसरे के साथ एक क्लोज कर रही है तो किस तरह से जो है ये कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल contraction process of the skeletal muscle at the level of sarcomere. Here are the last topic is basically the properties of the muscle tissue. What are in this lecture we discuss the function of the skeletal muscle, then anatomy of the skeletal muscle, and the physiological activity of the contraction of the muscle, and then what are basically the properties of the muscle tissue, that is excitability. Excitability
एक्साइटेबिलिटी की जो है वो क्या है, मसल में एक प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है टू response to the chemical signal. That is basically the excitability of the property of the muscle tissue. कंडक्टिविटी मीन कि एक सिग्नल को, एक वेव की एक्साइटेशन को फर्दर वेव के अंदर जो है वो फर्दर जो है वो मसल फाइबर के अंदर जो है वो ट्रांसफर करना, ठीक है। तो लोकल इलेक्ट्रिकल चेंज जो कि सार्कोलिमा में हो रहा था, उसको ट्रिगर करना, triggers a wave of excitation that travel along the muscle fiber, कि वो पूरे मसल फाइबर के अंदर जो है वो रन करें। That is conductivity. Contractility is the shortening of the muscle. Extensibility is the capable of being stretched. Elasticity is return to its original shape. So excitability, conductivity, contractility, extensibility, and elasticity are the basically properties of the muscle tissue. देन फर्दर जो है उसको थोड़ा सा जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट आर बेसिकली द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इज बेसिकली बोथ नर्व एंड मसल, ठीक है। एंड electrical excitability can travel along the cell plasma membrane due to the presence of specific voltage gated channel that will be in the form of sodium and potassium and maybe calcium channels. And two types of stimulate trigger the action potential, that is the electrical signal arising in the muscle tissue, and the chemical stimuli such as the neurotransmitter which are in the form of the hormones and maybe which are present in the blood. Then there is the contractility. Contractility is the ability of a muscular tissue to contract. Extensibility, again, stretching you have a property here. It is also present in the smooth muscle also. Elasticity again to return the original shape. Okay, and conductivity is the local electrical chain trigger, a wave of excitation that travels along the muscle fiber. Conductivity. Thank you so much. Hopefully, you will understand the basic structure of the and the basic function of the muscle fiber. I try to wind up this whole lecture in the one lecture. Hopefully, you will understand. If any confusion in this lecture, we will discuss in further classes. Okay, ji. Allah Hafiz.